very first variety identified by the NSC in the NIFAD of the Nasik district. At now, no any breeder foundation certified seed is available. But in the private sector, they are marketing by N53 other varieties. So we think if breeder is not available, how can varieties going in the market? First. Second thing, in the vegetable sector, maximum we are exporting the onion bulb. Maximum we are exporting the onion bulb, but onion is going, not in varieties going. Just like in the mango and grape, we are exporting variety wise, and identity of the particular variety, but in onion is not happening. If we try to mechanism anyhow, if variety identity go to export, and farmers getting the money. Third point is, I have seen in the Sikar district of the Rajasthan, also the Jodhpur district in the Rajasthan, they are producing onion seed, onion bar also, but they don't know which variety. This variety, they are given 40-45 times irrigation during the 120 days. Water is going to losses, and they have the more content of the moisture. They are not going, Rabi variety, they are not going to store because of the maximum vitamin. So this is the 4th point regarding garlic. Maximum estates have seed certification agencies, but where they are producing garlic, they don't know what is the standard of the garlic. When you provide the garlic standard, तो ठीक है आयरन साड़ी अब कपाला हम कर लेते करके, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उनके अवारन से इवन जहाँ पे हम नया स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर ओनियन के लिए और गार्लिक के लिए, दे डोंट नो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. कभी कभी तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, फिर बात करके करना पड़ता है. 3-4 ओनियन गार्लिक के इश्यूज हैं, बिकॉज NHRDF is only agency in the India provide garlic seed breeder to till the TLC. Thank you so much sir for giving us. मध्य प्रदेश में आया है, वो सबको अवगत कराना चाहूँगा. यह तो विदित है कि राज्य बीज निगम जो है वो कभी सीड की पूर्ति कर नहीं पाएगा, और इसलिए मध्य प्रदेश में सीड सोसाइटीज़ का कंसेप्ट जो आया है उसके कारण बहुत अच्छे ऐसे अनुभव को प्राप्त हो रहे हैं कि किसानों का ग्रुप अपनी सोसाइटी बनाते हैं और सोसाइटी बनाकर ब्रीडर सीड यूनिवर्सिटी से लेकर और उसका फाउंडेशन और सीड चेन को अपने स्थानीय तौर पर चलाते हैं. एंड दिस हैज प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स एज फार एज द अवेलेबिलिटी इज कंसर्न एंड द प्राइस ऑफ द सीड इज कंसर्न. इसमें केवल एक चीज़ की आवश्यकता है कि सीड प्रोडक्शन के जो विभिन्न आयाम है उसके संदर्भ में लगातार उनको ट्रेनिंग्स देना, इसकी निरंतर व्यवस्था करने की आवश्यकता है. और इसके साथ एक चीज़ और जोड़ी जा सकती है जो डॉक्टर गौतम साहब ने बताया कि स्वयं का बीज स्वयं अपना सिलेक्ट करके और उसको प्रोपोगेट करना. तो कैसे अच्छे पौधों का चुनाव करें, इसके ऊपर भी अवेयरनेस जो है वो किसानों तक लाएगी, तो काफ़ी हद तक हमारी सेल्फ सफिशिएंसी खास करके मध्य प्रदेश में पल्सेस में पिजन पी और आपके ग्राम, सोयाबीन और वीट, ये 4 क्रॉप्स में तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है. इसको तो ऑपरेट करना. ये मैं बता दूं, ये परिवार से आए हैं, ये NGO चलाते हैं और किसानों के साथ सीड प्रोडक्शन करके वैरायटियों का कंजर्वेशन करते हैं. उन्होंने सुना बताया कि मेरे पास 212 प्रजातियाँ धान की हैं, ये यही काम करते हैं कि इनसे थोड़ा प्रैक्टिकल बेंगलोर में थोड़ा तेज बोलो. सोसाइटी नाम का सागर कृष्णनगर स्वामी विवेकानंद सोसाइटी फार्मर्स ग्रुप सीड ओन आप बोलिए प्लीज. আমাদের যেটা মূলত সমস্যা पर आओ. মূলত যেটা প্রবলেম যেটা হচ্ছে আমাদের সরকারি সিটগুলো যেটা আছে মানে গভর্নমেন্ট সিটগুলো সেটা টাইমলি পৌঁছচ্ছে না. প্রবলেম 2 নম্বর প্রবলেম হচ্ছে যেটা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে যে সিটগুলো হাই মানে ভ্যালু হচ্ছে, সেখানে কৃষকদের ক্ষেত্রে কেনার ক্ষেত্রে বা যে বর্তমান যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপরে যে ফসলটা আছে সেখানে কিন্তু দেখা যায় কৃষকরা মার খাচ্ছে. 1 নম্বর. 2 নম্বর যেটা প্রবলেম এটা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরের সিটগুলো অনেক সময় জার্মিনেশন অর্থাৎ জার্মিনেশন অনেক প্রবলেম হচ্ছে 65-70 দেখা যাবে 85 অনেক প্রাইভেট সেক্টরে প্রবলেম সুন্দরবনটা অনলি ফর সুন্দরবন যেটা প্রবলেম দেখা দিচ্ছে. আর যেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সেক্টরে যে বীজ নিগম থেকে যে বীজগুলো আসে টাইম ওভার ফার্মার্সের পক্ষে বড় প্রবলেম. আর
আমরা যেটা দায়িত্ব নিয়ে করেছি লোকাল সিডগুলো অর্থাৎ লোকাল ভ্যারাইটিসগুলোকে মানে সিডগুলোকে নিজেদের সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের ট্রেনিং দিয়ে তাকে সিডগুলোকে অ্যাভেলেবেল করিয়ে চাষিদের কাছে মানে আমাদের দিয়েছি। যেমন আমাদের প্যাডি দিয়েছি, ফিস দিয়েছি, মানে এইরকম আমরা প্রায় 1000 ফার্মার্সকে এরকম সিডগুলো বছরে ডিস্ট্রিবিউশন করে থাকি লোকাল সিডগুলো। আর চাষিদেরকে যেটা হচ্ছে তুলনামূলক ধরুন আমাদের 1 একর মানে 1 একরের উপরে প্রোডাকশনের উপরে বাজার ভ্যালুর উপরে চিন্তা করি যে কতটা আমাদের ভ্যালুটা লাগছে সিড কিনতে এবং তার লোকাল ভ্যালুতে কতটা পার্সেন্টেজটা কম লাগছে। দেখা গেছে যে 1 বিঘে জমিতে মানে 33 শতক 33 শতকে প্রায় 500 টাকা ভ্যালু মানে লো ভ্যালু লাগছে। এই নিয়ে আমরা কৃষকদেরকে আজ 2010 সাল থেকে আজ 2018 সাল শেষ অবধি আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি যে সিড বাঁচাও গ্রাম। আর আমরা যেটা করেছি যে সিড আমাদেরকে প্রথমত আমাদেরকে মাদার হিসেবে ধরতে হবে। সিড যদি থাকে একজন কৃষক দেবে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আমরা এটাকে নিয়ে আগামী দিনের একটা আন্দোলন করে সুন্দরবন সারা সাগর 29টা যে সুন্দরবনের মানে ব্লক আছে প্রত্যেকটি গ্রামে আমরা এই আন্দোলনটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা আন্দোলন করছি। নমস্কার। 1 मिनट में इसको ब्रीफ कर दूं, जो मुख्य 2 बातें निकल से बाकी तो किसान से खरीदी जाता है। जो किसान सरकारी बीज खरीदते हैं या लेते हैं उनको समय से उपलब्ध नहीं होता है। इन्होंने एक मुहिम चलाई है जिसमें इन्होंने चलाया है सीड ग्राम बचाओ। इन्होंने 20 ग्राम सीड ग्राम में अंग्रेजी में बोल दिया 20 ग्राम बचाओ। ये एक इनकी मुहिम है जिसमें जहाँ भी बीज उत्पादन इनके गांव में होते हैं उनको कैसे अच्छा करा जाए, उनको कैसे किसानों को और अच्छा इनकम उनकी बढ़ाई जाए, है ना, यही इनका काम है, यही बात है। तो इस पर हम लोग अभी आपकी सबकी बात सुन ली है और उससे चर्चा करते हैं। और उन्होंने एक मुद्दा और एक रखा कि जो निजी क्षेत्र से मिलता है वो बहुत महंगा मिलता है। हाँ, महंगा और उसकी वो तो जनरल प्रॉब्लम है, वो कोई बात नहीं। जनरेशन परसेंटेज पे क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा कि जो हमारा बीज है मेरे को बंगाली आती है 10,000 फार्मर ऑफ आपका बांग्लादेश को मिशन डिस्ट्रिक्ट है ना हाँ, वहाँ पर 3,000 फार्मर को हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पर ट्रेनिंग दी है और वो आज भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आप भी बता सकते हैं। उन्होंने क्या है मैं बताता हूँ, उनके क्या है कि सीड सर्टिफिकेशन जो पहले जो सीड सर्टिफिकेशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सीड सर्टिफिकेशन लोग करते हैं, जिसके कारण इसलिए हमने कहा ना सेल्फ सर्टिफिकेशन सीड को आप दत्तक दें गवर्नमेंट। और क्या होता है जो प्राइवेट का गवर्नमेंट का सीड जो आता है वो टाइमली नहीं आता। पहली बात जब आता है तो हमने कहा ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज कंडीशन ऐसी है और सीड सर्टिफाई जब किया गया था 6 महीने के बाद आता है उसकी विगर जर्मिनेशन वाइबिलिटी कम रहेगी और रहेगी। क्यों सर्टिफाई तो हो गया था उस टाइम, जब सर्टिफाई जब हुआ था उस टाइम सीड स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए गए थे। जब फार्मर फील्ड पर पहुंचा डू यू थिंक दो स्टैंडर्ड्स आर स्टिल देयर? नो, दे कैन नॉट बी देयर, दे कैन नेवर बी देयर। तो इसलिए हमें सीड लॉज के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। और तीसरा, अगर फार्मर का ग्रुप हम जैसे बना रहे हैं आज की डेट में विलेज सीड विलेज कंसेप्ट चल रहा है और फार्मर जब मिलकर अपना सीड प्रोड्यूस करेंगे तो उनको सीड बेचने का प्रावधान भी किया जाए। और उसके लिए अगर सीड सर्टिफिकेशन की ड्यूटी लगाएंगे तो सीड सर्टिफाई उनको हो नहीं पाएगा, उनका सीड बिकेगा नहीं। क्यों ना गवर्नमेंट एजेंसी भी हमारी फार्मर्स प्रोड्यूस सीड को महत्व दें, क्वालिटी सीड होगा, गवर्नमेंट की अवेलेबिलिटी होगी, प्राइसेस में कम होगा, मोनोपोली नहीं रहेगी, मोनोटोनी नहीं रहेगी, प्रोडक्ट की नहीं रहेगी, प्राइस की नहीं रहेगी। तो जिससे कि सीड की अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी, टाइमली अवेलेबिलिटी, कम पैसे में। मैं गुजरात से आया हूँ और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 30 साल से काम कर रहा हूँ। वैसे मैं प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में MSc किया और जस्ट वुड लाइक टू रीइंफोर्स सम ऑफ दिस थिंग्स। 70% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में जो भी सीड इस्तेमाल होता है वो आज भी कम्युनिटी फार्मर प्रोड्यूस है। Whenever we talk about availability, let us consider this sector as the prime sector to make seeds available for the farmers. Because they are the biggest suppliers even today. खुद मैं प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स जानता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्यों ना हम किसानों को ही एम्पावर करें कि अपना बीज बना ले, वही बात है। और उसमें बहुत आवश्यक है कि उनको कुछ अच्छे ट्रेनिंग भी दी जाए। हर गांव में 2-4 महिलाएं किसान आज भी है, वो या तो सरकार के लिए या तो कहीं प्राइवेट कंपनी के लिए बीज बना लेते हैं
और फिर एक प्रकार से इनएफिशिएंसी, करप्शन, डिले, उसके या तो वो बन जाते हैं सरकारी तंत्र से, या तो फिर प्राइवेट एजेंसी का अपना मुनाफा का ही रहता है। तो ये पूरा क्वालिटी एश्योरेंस से लेकर अवेलेबल कराना, क्वालिटी चेक कराना, उसके लिए कम्युनिटी को ही एम्पावर किया जाए कि 10-15 गांवों का समूह है, रिसेंटली गेहूं का बीज बनाना है, आप आ जाइए, 2-4 प्रकार के बीज लगे हुए हैं, आप चेक कर लीजिए, अगली साल आप कौन सा आपका बड़ा अच्छा सुझाव है। अभी हम दूसरे किसान को भी मौका देंगे और आपकी बात करेंगे। तो चाहिए कि सेल्फ सर्टिफिकेशन करके ना उस बीज की बिक्री कर सकें। ठीक, अच्छा सुझाव है। एक दूसरा भी, जब हम एक ICR के कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं तो विकास का, कृषि विकास और सीड के बारे में एक मानदंड है सीड रिप्लेसमेंट रेट, वो ही अपने आप में एक गलत मान। तो मैं एक विज्ञान के रूप में कह रहा हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट फार्मर्स चेंजिंग द सीड ऑल द टाइम। ये अलग कहीं और तरीके से विदेश से आया हुआ जैसे स्टैंडर्ड्स भी है, ये भी मानदंड ऐसे है कि आप सीड बदलते जाओ, यानी यू आर मेकिंग फार्मर्स मोर वल्नरेबल टू मार्केट फोर्सेस। बाहर से खरीदो, क्यों ना सेल्फ प्रोड्यूस? कांट वी हैव ए काइंड ऑफ ए मानदंड कि सेल्फ प्रोड्यूस सीड किसान कितना इस्तेमाल कर रहा है, वो भी कृषि और विकास की नीति का एक हिस्सा मानदंड हो जाए। This very different paradigm we are talking about. Otherwise, नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। मगर हर बार बीज को बदलना, why we should have a मानदंड that standard that seed replacement rate should be higher than only you will consider progressive. आपको प्लांट ब्रीडिंग के हर साल नहीं बदलना, हर साल नहीं बदलना, 3 साल बाद डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिटी। फिर भी I would say वो इस तरीके से नहीं देखा जाता। देखिए हम इस पर हम खुले इससे विचार कर रहे हैं, तो जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए, जो भी बात रखने ना आने दीजिए, कोई कॉन्ट्राडिक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग ले थॉट्स और उसके बाद में फिर उसका विचार करेंगे। आप उनको कोई जवाब दे दो। नहीं, कोई जवाब देने की भी आवश्यकता नहीं है। जवाब नहीं देना, अपनी अपनी बात रखना। हम अपनी बात रखें, किसी को कोई कॉन्ट्राडिक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आने दीजिए। ये भी एक विषय है। जो प्रश्न पूछा है वो उसमें खाली आपको कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के बारे में भी सोचना होगा। कैन यू फोर्स समबडी टू वेदर चेंज सीड और नॉट टू चेंज? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट के विरोध में होगा लीगल एंगल। नंबर 2 में ये खाली सुझाव देना चाह रहा हूँ कि पहले कोई भी सेशन के पहले हमको व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर डिस्कशन ये डिफाइन कर देना चाहिए कि हमको पॉलिसी में चेंज सुझाना है या और कुछ करना है, ताकि सारे लोग उसी इसमें बात करेंगे। अन्यथा मिक्स हो जाएगा। जैसा हम अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सप्लाई में भी उसके बारे में आ रहा है, सप्लाई में कौन कौन से प्रश्न जा रहे हैं। तो पर्पस शुड बी डिफाइंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। नहीं आ रही। हाँ, इसको ऑन कर ले। नो, हाँ, ऊंचा कर लो, ऊंचा। सर, मैं सीड सर्टिफिकेशन उसको वॉल्यूम बढ़ाना एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि बाकी सभी क्रॉप्स के अंदर जो नंबर ऑफ सीड से लेते हैं दैट इज 400, बट कॉटन में 90 सीड माना गया है भाई। तो इस पे तो देखा जाए। दूसरा, जो रिफ्यूजी एंड बैग अभी स्टार्ट हुआ है उसका अभी प्रोटोकॉल ही नहीं बना है, 2 साल से आ रहा है, और ये प्रॉब्लम आ रही है सीड इंडस्ट्रीज को, क्योंकि सीड इंस्पेक्टर्स जो हैं वो तो प्रोटोकॉल निभाएंगे जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इट इज नॉट अवेलेबल टिल नाउ। वी आर रिक्वेस्टिंग टू द कमिश्नर साहब, प्लीज थोड़ा जल्दी करके उसका प्रोटोकॉल एक बार आ जाए। सीड इन बैग वाला जो है, एक तो रिफ्यूजर बाहर होता है उसका है अवेलेबल, लेकिन जो अभी सीड इन बैग आ गया है, मिक्स करके आया, उसका प्रोटोकॉल अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट है सर, सीड इन बैग का मैं समझा नहीं आपकी बात क्या है। ये बीटी आप कॉटन की बात कर रहे हो? रिफ्यूजर नंबर 6 रिफ्यूजर के लिए बीटी कॉटन की बात कर रहे हैं। रिफ्यूजर का प्रोटोकॉल नहीं है सर अवेलेबल। प्लीज आप क्वालिटी सीड एंड क्वांटिटी। क्वालिटी के बारे में लेट अस टॉक अबाउट राइस एंड व्हीट।
वीट का जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो यील्ड स्टैबलाइज किया 20 बरस हो गए, वी डोंट सी एनी इंक्रीज इन द यील्ड. व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो व्हाट आई वांट यू टू comment on it, what is the underlying research going on? Why that research is not contributing to yielding? That is it. Now in case of rice, same situation. But in rice, what I heard was that IRRI, International Rice Research Center, has I have a brochure and I can share with you that there are a lot of programs to improve the quality of seed, not only from the yield angle but also from nutrition angle. Nutrition भी बढ़ा है, that is biofortification. So what is the status of research? Maybe you want, because that is the fundamental thing to improve quality. Unless you have good breeder seed, you don't have the chain, right? So what is the status of ICR research on improving the yields and also the other quality aspects? I should stop. There are many other, but right now stop. जब बीज की उपलब्धता की बात कर रहे हैं तो इस संदर्भ में ऐसा भी सोचने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत जलवायु परिवर्तन के बहुत बड़ी असर किसानों के ऊपर हो रही है और उसके कारण अलग अलग प्रकार की समस्याएं उनके सामने आती हैं. अभी इस बार भी जब IMD का प्रिडिक्शन और प्रत्यक्ष, इसमें बहुत अंतर आ गया, खासतौर पे महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के हिस्से के संदर्भ में. तो ऐसे समय में हम लोगों को जो जिस प्रकार का क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है उस प्रकार की सीड अवेलेबिलिटी करने की बात करने की आवश्यकता रहेगी और उसके ऊपर हमको थोड़ा सा जोर भी देने की आवश्यकता रहेगी. और इसके लिए हमारे देश में जो उपलब्ध जैव विविधता है उसका उपयोग करने की दृष्टि से आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, ऐसा लगता है. Just to one supplement. सर एक मैं आपको क्वेश्चन ऐड कर दूं. What Dr. Hello. The point there is that now in the rice planting technology is changing. People have been doing transplant. Now a lot of people are going for direct seed. So we don't have very much research available that what are the agronomic or other conditions or what kind of seed improvement required if you have to go for direct seed. So maybe again this is a research related question. सर एक बात ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के संदर्भ में आ रही है, हाइब्रिड्स की चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है क्योंकि हाइब्रिड से पूरा प्राइवेट सेक्टर के इसमें चला गया है, खास करके वेजिटेबल्स की बात हम करें तो. लेकिन मैं कॉटन का मैं अधिकृत रूप से बात कर सकता हूँ यहाँ पर कि भारत और कुछ एशियन कंट्रीज़ केवल यहीं पर है जहाँ पर हाइब्रिड्स चल रहे हैं, बाकी जगह पर हाइब्रिड्स नहीं है. तो हाइब्रिड बहुत आवश्यक है क्या, इस विषय पर भी चर्चा होना चाहिए क्योंकि सीड की अवेलेबिलिटी फिर पूरी प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड हो जाती है और फिर महंगा बीज बिकता है. तो यह भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए कि वेदर वी शुड गो फॉर वैराइटीज़ जिसमें कि किसान खुद अपना बीज बना सकेगा. तेलंगाना lot of seed production will be there in Telangana. हो सकता है इधर सीड बॉल ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं. सो बात यह है कि रिसर्च में जो वेराइटीज बनता है वो पॉपुलराइज नहीं होता है, एक्सटेंशन नहीं होता है, वो सारे करेक्ट जगह पे सीड पहुंचता नहीं, इन टाइमली नहीं पहुंचता है. सो अपने को किसान को होना है बीज का कंपलसरी supply, seed supply should be compulsory made by the government of India. So whether we have a lot of having a farms at state level or national level, सब जगह सीड बन सकता है. ये कंपलसरी होना है सीड जैसा है, हर खेती को पानी, हर फार्मर को सीड कंपलसरी made it should be made mandatory. And next thing is जो फार्मर प्रोडक्शन के लिए जाता है वो क्वालिटी सीड नहीं मिलता है, उसके लिए तो ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड कंपलसरी शुड सप्लाई थ्रू द रिसर्च और यूनिवर्सिटीज. This can be made mandatory, but we have some of the areas seed village program. It will not fulfill any seed availability in the farmers level, but
there is no support for the farmer to supply or distribution the same seed to the farmer to farmer. So a lot of things are going, but the implementation part. But government of India has to think every farmer should get seed timely and quality and affordable price. And we have to replace the seed ratio. We have to give infrastructure to the farmers at the village level or mandal level. So proper storage facilities, cold storage, we have to think of that. And regarding a regulatory system must be implemented properly. The authority of जो implement करता है, जो regulatory system है, उसको थोड़ा अच्छा implement करने के लिए अपने के लिए सोचना पड़ेगा. डॉक्टर प्रकाश शास्त्री जी ने बताया कि हाइब्रिड की जरूरत वास्तव में है क्या, क्योंकि अभी एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा. नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का मध्य प्रदेश का है. वहाँ दो चीज़ें हैं, एक मसूर और एक गुलाबी चना है. सैकड़ों साल से चला आ रहा है. उसके ऊपर रिसर्च हुआ काफ़ी, गुलाबी चना के ऊपर भी हुआ, मसूर पर भी हुआ. जो हाइब्रिड मसूर है, हाइब्रिड गुलाबी चना वगैरह जो बनाए गए थे वो वहाँ पर लाए, फार्मर्स को दिए, वो उसकी बराबरी नहीं कर पाए. सैकड़ों साल से आज भी वहाँ का जो पारंपरिक बीज है उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ. उसमें तीनों चीजें हैं. एक तो उसका यील्ड, उतना यील्ड कोई आज तक कोई बीज दूसरा नहीं दे पाया. तीसरा है कि डिसीज के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस है वो आज तक कोई क्रिएट नहीं कर पाया. और तीसरा है क्वालिटी. वो क्वालिटी अभी तक कोई दूसरा कोई भी हाइब्रिड सीड नहीं बना. तो ये जो पारंपरिक जो है ये बकवास बात नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. इसमें सीधा किसान जुड़ा है और उससे ये जो कह रहे हैं कि 3-3 साल में जो बीज बदलना जरूरी है वो सैकड़ों साल से चला आ रहा है. आज तक किसी किसान ने बीज नहीं बदला, सैकड़ों साल से. उसका कोई अभी तक सानी दूसरा बीज नहीं आया है. अभी हम लोग बात करेंगे नहीं, जस्ट मैं उसकी पहले हमारे को, क्योंकि मुझे मैं अपनी बात रखी, केवल मैंने अपनी बात रखी. बड़ा अच्छा सजेशन है, लेकिन एसआरआर के बारे में मुझे ये समझ में आ रहा है चाहिए या नहीं चाहिए. वही बात है. आज की डेट में मैं आपको क्लियर कर दूं, फूड सिक्योरिटी विदाउट हाइब्रिड विल नॉट बी देयर. पहली बात, फूड सिक्योरिटी विदाउट हाइब्रिड इज नॉट गोइंग टू एड्रेस इन दिस कंट्री. पहली बात, आप देखिए हिंदुस्तान का 65 से 70% एरिया हाइब्रिड बाजरा में. क्या आप राजस्थान के लोगों के अंदर पानी 200 से 300 मिलीमीटर है. और मैंने हाइब्रिड पर 40 साल काम किया. मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इसका हाइब्रिड की रूट्स और बहुत डीप जाती हैं, जो कि मॉइस्चर स्ट्रेस में लॉन्ग लाइफ मिलती है. अगर एक आधा बरसात का फ्लावर मिल गया तो सर्वाइव कर जाएगा. अगर आपने वैरायटी लगा दी तो मर जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, मेज हाइब्रिड की बात बता रहा हूँ आपको. हिंदुस्तान 2006 से 5 से सुनिए ना, आप सुनने में बाधा रखिए ना. आप मीटिंग कॉल की है तो आपने हाइब्रिड मेज मंगाते, जब हम सीड मेज जो है ना इंपोर्ट करता था इंडिया 2006 तक, जब हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को फार्मर के लिया, उनकी इनकम बढ़ी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, मेज का एरिया बढ़ा, हम इंडिया एक्सपोर्टर टर्न हुआ. ग्रोथ रेट मेज का हाईएस्ट हो गया और वर्ल्ड के अंदर मेज आज इंडिया एक्सपोर्ट करता है नेबरिंग कंट्रीज को. तीसरी बात, हाइब्रिड के अंदर जो पोटेंशियल है, इट कैन टॉलरेट टू ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेसेस और सोल्यूशन बड़े फास्ट हैं. जो हमारे डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि पर्टिकुलर बेल्ट के अंदर, हर एक बेल्ट के अंदर एक लोकलाइज मटेरियल होता है और वो सर्वाइव करता है, लॉन्ग टाइम करता है. मोमेंट उसको बाहर ले जाए उससे नहीं चलेगा. एक बाजरा का जखराना है, बाजरा का जखराना का इतना बड़ा भुट्टा आता है, सिर्फ वो जखराना के अंदर है. मैंने उस पर 10 साल काम किया उस प्लान से इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल जुखराना के बाहर नहीं निकल सका. ऐसे जौनपुर के अंदर मूली है, डॉक्टर मल्होत्रा नोज वेरी वेल, जो 5 से 10 किलो मूली होती है. मोमेंट यू ब्रिंग दैट मूली इधर बेल्ट में वो नहीं चलेगी. लेकिन देखिए ICR इंस्टीट्यूट में SC में बहुत काम हो रहा है, हुआ है. आपको बाय 45 पे भी है, राइस पे भी वैरायटी डेवलप है, सोर्गम में डेवलप है, मेज में डेवलप है, बाजरा में डेवलप है. रिजल्ट भी है, फार्मर फील्ड पे गई हुई है. ऑलरेडी द गवर्नमेंट हैज मेड मिशन 200 करोड़ रुपए का, जो कि 45 फूड जा रहा है अंडर मिड डे मील्स को. ठीक है तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिए बहुत चीजें हो रही हैं. डॉक्टर बोलते कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाएंगे. माइक बंद हो, माइक बंद. There were concerns that it is not available, and
I was having discussion with CMD National Seed Corporation. He said he is having plenty of seeds available with us. But the problem is that he is not getting indate on time from the state governments. That's why they are not met. This is my personal experience. With you also will share that people or farmers still have faith in government system. So my suggestion is that, is it possible to make digitization of all the state corporations and NSC, what stock they are available, and all indent should be mandatorily made on online? Very good suggestion. I asked him, he said I don't, I'm not. Very good suggestion. But no government give in. We have a We have a seed portal. उनके पास सीड है, गवर्नमेंट की डिमांड है, but there is no coordination. Coordination. देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं भी देखिए coordination की बात नहीं है. Government doesn't want to take from the government sector seed. That is why government sector is not producing private seed. There is something else. So आप ये मैं कह रहा हूँ. अभी हमारे पास इंडस्ट्री सेक्टर रह गया. इंडस्ट्री सेक्टर. One last point. Is it possible from RKBY or any scheme which is funding to state government that state government should procure seed from NSC and distribute under different schemes to farmers? Very good suggestion. Is it possible? Rajasthan already started. Yeah, I know that, but it is not pan India. But now RKBY is just one of the schemes, or any other schemes which free of cost distributed as like TSP or it should be available free of cost to farmers. Rajasthan government and West Bengal government started this program and it went very well. Fire seeds. A lot of the discussion has happened on the seed policy issues. It's not working. Sir, I just want to suggest कि जो National Seed Development Policy है 1988 में आई थी पहले, उसके बाद 2002 में एक बार दोबारा से भी न्यू सीड पॉलिसी आई. But last 30 years में sir there is no fresh discussion on जो सारे seed quality issues हैं. We are also facing सेंट्रल स्टेट में जो सीड लॉ का इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, सीड लाइसेंसिंग में, सीड प्रोडक्शन में, रिसर्च से रिलेटेड सीड टेस्टिंग ट्रायल्स में सर. तो सर ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द नेशनल सीड पॉलिसी, ए रिवाइवल ऑफ द न्यू सीड पॉलिसी व्हिच शुड बी द address all these concerns related to quality etc. should be taken to the government of India. That's why we are That's why we sitting here. सीड प्रोडक्शन का जो जहाँ तक सवाल है, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को लैंड ग्रांट पैटर्न के ऊपर एस्टेब्लिश किए कई सारी, लेकिन अब कई सारी यूनिवर्सिटी बढ़ गई है. अगर कहीं जमीन सीड प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट के कई फार्म्स हैं जो अनयूटिलाइज हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हैं, अगर उनको यूनिवर्सिटीज़ को या उनको दे दिया जाए तो सीड प्रोडक्शन का काफ़ी, अभी हमारे राजस्थान में ऐसा किया भी है, लेकिन इनिशियली स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट विथ उसकी कहीं बाउंड्री का, जैसे नील गाय की प्रॉब्लम है तो बाउंड्री के लिए कुछ पैसा मिल जाए, कुएं खोदने के लिए मिल जाए, तो इसके तो काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. वी ऑलरेडी स्टार्टेड इन दिस डायरेक्शन और अभी हमारा जो प्रोडक्शन है सीड का वो ले रहे हैं, शुरू कर दिया पिछले 1-2 साल से. सर एक मेरा जो डॉक्टर शर्मा जी कह रहे हैं ना, पहले जो सीड प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन ने ले लिया है. Earlier university used to produce the seed. No, we have already, हमने सीड का लाइसेंस भी लिया है, हमने ब्रांड भी हमने प्रताप बीज के नाम का किया है और हम यूनिवर्सिटी के नाम से हमारे केवीके के माध्यम से, एटिक के माध्यम से हम किसानों को सीड दे रहे हैं. डॉक्टर साहब के प्रयास से हमारे को पूरे राजस्थान की 500 इंस्टीट्यूट्स को बहुत सारे फार्म दे दिए गवर्नमेंट ने दे दिए. From our different sectors, and we have noted those points, and I will just we will take it in a quick round, and one of our experts are available here. So I will first request Dr. NC to just give his देखिए मैं 5 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा related to the major recommendations and reply to some major points. पहला तो ये निकल के आया कि हमारे माइक बंद हो गए थोड़ा सा हल्का. जो हमारे सीड विलेजेस बने हैं उनमें जो किसान हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको ये अथॉरिटी हो जाए, जैसे टैग होता है, टैग सीड जिसको ट्रूथफुल सीड कहते हैं, उस लेवल पर उनको अनुमति दी जाए जिससे कि सीड क्राइसिस या सीड की जो अवेलेबिलिटी है वो बनी रहे. एक दूसरा बिंदु आया था उधर से निकल के कि कॉटन में जो है बीटी का नहीं है. ऐसा नहीं है कि बीटी ही सब हो गया है अवेलेबल.
इसके लिए भी एक मोटिवेशनल प्रोग्राम किसानों के बीच में सरकार चलाए या हमारे जो केवीकेस हैं या आईसीआर मिलके एक संयुक्त अभियान चलाए जिसमें कि एक जागरूकता हो और उनके रिसोर्सेज क्या चाहिए उसके लिए एक उपलब्धता कराई जाए। तीसरा बिंदु मैडम ने उठाया था वो बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ आज हम जो हमारी परिस्थितियाँ 2002 में थी या 2018 में नहीं, हमको अपनी सीड पॉलिसी को एक बार अवलोकन करना चाहिए, रीडिजाइन रीडिफाइन की आवश्यकता है। भले ही हम उसको दोबारा क्यों न लागू कर दें, अगर उसमें कोई भी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन की जरूरत है तो वो होनी चाहिए। एक बिंदु ये निकल के आया, उसमें सभी स्टेक होल्डर जो भी उसमें सहयोगी हैं वो होना चाहिए। मेरा एक अलग है, मैंने एक अनुभव किया वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो शायद इस अभी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। हमने एक प्रोग्राम चलाया है BSW बैचलर ऑफ सोशल एंड कम्युनिटी लीडरशिप। उस कम्युनिटी लीडरशिप में हमने विवो एग्रीकल्चर के लड़कों को अभी हमने पहला प्रोग्राम चने का लिया है मध्य प्रदेश में 40 किसानों में 4 स्टूडेंट उनके साथ लगाए। विवो एग्रीकल्चर BSc के 4 स्टूडेंट हैं। वो जिस दिन से खेत की सॉइल सैंपल से लेकर हार्वेस्ट तक उनके किसान के साथ रहेंगे, पूरी टेक्नोलॉजी देंगे और उनको सब चीजें वो बताएंगे। मेरा इतना लंबा है प्रोग्राम, अगर वो पूरे सेमेस्टर उनके साथ रहेंगे। वो ICR भी करता है विवो इन एग्रीकल्चर, तो उन बच्चों को हमने लगाया, वो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, तो वो किसान के साथ जुड़े हैं, NGO के साथ भी जुड़े हैं, KVK के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई अगर कृषि विश्वविद्यालय या KVK के पास है तो ऐसे 2-3 किसानों को हम ऑप्ट करें और उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित करें। वो हमारे मेंटर्स होंगे। जिन किसानों को हम इस बार ट्रेन कर रहे हैं वो अगले हम उनको ट्रेन नहीं करेंगे, वो 10 किसानों को ट्रेन करेंगे। वो विल बी मेंटर फॉर द नेक्स्ट 10 फार्मर। ये हमने प्रोग्राम अपने ऑप्ट किया है और ये देश का पहला है जो हर ब्लॉक में 40 स्टूडेंटों के साथ चल रहा है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक, कोई ब्लॉक है नहीं। नेक्स्ट ये कुछ बात थी। जो दूसरी बात जो अभी हमारे मुद्दे चले गए, ऑनियन जैसी सीड है या ऐसे और भी सीडलिंग्स हैं जिनमें भी क्वालिटी की बात आती है। मिल तो कुछ जाता है, जब फलता है तो पता चला कुछ और निकल गया, तो उसको भी अभी स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे। उसके है नहीं, मगर एक बात और अंत में कहूँगा, सीड वाले बैठे हैं, रेगुलेशन तो वहाँ लागू होंगे जब कोई करना चाहे। प्राइवेट वाले सीड बेच जाते हैं किसान को सीधा, वो इतनी अच्छी मार्केटिंग करते हैं, काउंसलिंग कर देते हैं, वो सीड बिक जाता है, वो ले भी लेता है बेचारा। क्यों भाई तुम बताओ ना। देखो तो वो जब प्रोड्यूस निकलता है तब उसको पता चलता है कि क्या था इसमें। तो ऐसी चीजों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की जरूरत है। मेरा ही ड्राफ्ट बनाना है तो पॉलिसी इशू के अंदर एक विशेष बात निकल गया है कि जरा बहुत सालों से 30 साल के लगभग बताया गया है। तो ये जैसे एग्रीकल्चर एजुकेशन स्टेट इशू है, वैसे सीट पॉलिसी फ्रेमिंग में अगर अपन कह दें गवर्नमेंट को कि साहब इसको बहुत बड़ा पार्ट स्टेट बना ले, तो बहुत सारे स्टेट इनोवेटिव है, केंद्र के स्तर पर नहीं बन पा रही समिति, तो इसको स्टेट इशू बना दिया जाए तो झंझट खत्म हो जाएगा। बहुत बड़े मैटर्स को स्टेट इशू को स्टेट को छोड़ दिया जाए कि आप अपनी पॉलिसी बना लीजिए, तो वो अपने क्रॉप्स को ढंग से करेंगे और उनका जो स्ट्रेंथ पॉइंट है उसके अंदर वो पॉलिसीज में ले जाए। जो नेशनल इशूज है वो उसको उसकी इम्यूनिटी नहीं देंगे उसको, परंतु बहुत बड़ा पार्ट अगर स्टेट पॉलिसी बना ले, अभी ये बहाना बनाती है स्टेट पूरी की पूरी, स्पेशली वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कि पॉलिसी नहीं, कोई बिल्कुल ही पॉलिसी नहीं, मिनिमम पैरामीटर्स भी नहीं है। तो स्टेट को लिबर्टी दी जाए इस पॉलिसी में, ड्राफ्ट पॉलिसी में, कि साहब आप अपनी सीड पॉलिसी साइमल्टेनियसली बना लें, फ्रेम करें। ये एक विषय एक लास्ट में एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ICR ने पूरे कंट्री में एक कमेटी बनाई थी डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स के लिए, और वो कई वाइस चांसलर और डायरेक्टर STR इंस्टीट्यूट थे, और सभी स्टेट ने अपनी पॉलिसी बना करके उसको 3-4 बार मंथन हुआ। यहाँ डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब के सामने उसको प्रेजेंटेशन हुआ, एंड फाइनली दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो इकोक्लाइमेटिक जोन वाइज बनाई गई है वो हमने स्टेट गवर्नमेंट को उनके रेस्पेक्टिव CM को भेज दी। उन्होंने तो दिस पॉलिसी मैटर्स को इसको राजस्थान के जो भी स्टेट है सभी में उसको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह करके आने वाले समय में उन पॉइंट्स को लागू किया जाए। सर उसके बारे में मीटिंग हुई, आपको सूचित कर देता हूँ। उसमें बहुत सारे इशू ऐसे हैं कि जो हमारे स्टेट एड्रेस इशू और हमारे सीड इशू है, तो मेजर रिकमेंडेशन आपकी मैं भी आपके साथ उसके अंदर था। तो उसके अंदर प्रॉब्लम है कि हमको इम्यूनिटी मिले कि हम इन इश्यूज को स्टेट ही एड्रेस कर लेगा, जैसे एग्रीकल्चर एजुकेशन को हम एड्रेस करते हैं, तो वैसे ही हमारे जो ये सीड पॉलिसी है इसको एड्रेस कर पाएंगे। इंडिविजुअल बनाओगे नहीं आंध्र प्रदेश, राजस्थान डजंट एग्री दैट। नहीं सर, अभी जो इशू में एक लाख नहीं सर, हम उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे,
उसका मेन स्टेप करो तो कुछ तो करने दिया जाए उनको. Agriculture is a state subject, that's okay. But seed certification cannot be state subject. If it is not uniform, the seed produced in Andhra will not be accepted by Rajasthan. Rajasthan produced will not be by Madhya Pradesh. अरे भाई ऐसे नहीं हुआ करता भैया, ऐसे कुछ सिस्टम में भी रहना. Farmers use 50% of the seed is produced, self-produced by farmers. So that whole sector gets unattended. You know, who is maintaining quality of that seed? So first of all, let us be clear. ICAR is spending a lot of money on the research. Why we do not see the results of that research in improving the yield in rice and wheat? So please raise this issue. What is the linkage between ongoing research and the seed quality issue? See, that is number one. And the second one is that the regulatory framework is fine for a public sector. But if you are asking farmers to produce 50%, then it should be self-regulated system. So therefore that he mentioned that. So that should be, and then you have to have linkage between the regulated system and unregulated system. So we need a national policy. National policy, how to support that is how to support farmer quality, infrastructure, self-certification, distribution, all that issues. Okay. Thank you very much. Thank you very much everybody for their those. A very good discussion has taken place, and I can understand that now many good things are happening, and we need to look into that. If our productivity is increasing, definitely we are getting a backup for good quality seed, which is reaching to the farmers. Yes, I understand. There are several states they are doing good job. There are few states they are not doing good job. Some kind of implementation lapses are also happening. Because central government policies are very clear, and those policies are being implemented. That's why a kind of progress is happening. I know we review this system in seed availability part, particularly through our Kharif and Rabi workshops, and we gather the data, we make a kind of calculations, we get the information from the states that how much seed is needed, and considering the targets which Government of India fixed that we need to produce for the food production. In consonant with that, seed availability and seed production programs are also made. So I remember when we discussed for a Kharif workshop, a calculation was made that in the country we need about 20 million tons of the seeds for Kharif food grain crops as well as oilseed crops. And out of this, when we reviewed that how much seed is available with us, this is the requirement and how much is available with us, then we came to know that we are more than the required quantity we are having seed which is available with us. So enough seed is available with us. Then again we reviewed for Rabi season. Rabi season again I was told that we need about 14 million tons of the seeds. Sorry, not 14 lakh tons. 1.4 million ton of the seed is needed for Rabi season. So Rabi season, all major crops were covered, and we saw that yes, enough seed is available. Then I was told about 14.2 lakh ton seed is already available with us. So seed availability is not the issue, but yes, quality part, that is very important. We understand that in some cases we have received the reports that quality seed is not reaching, but we need to put in force that seed quality system is required to be followed properly, and seed certification standards are not available for the many crops. It has come to our notice, though ICAR has developed the varieties, good varieties have been developed, but seed certification standards are not available. That's why those crops have not come in the seed chain. So I have taken up that issue, and a committee has been constituted, and that assignment has been given to me, and I am the chair of that committee. And now there are many medicinal plants, there are many agroforestry crops, there are many other Poaceae family crops, particularly these millets and others. There are few minor millets. Then few more vegetable crops are also there, for which even fruit crops, for which the standards are not available. So those standards are now being worked out. Then I was told that we do not have seed production manual. Means states are having. Few states are having, but central seed production manual that's not available. That is required to be further fine-tuned.
and now we are on the way to finalize that seed production manual that will come in practice now, and we are in the final stage of giving a final shape to that manual. So that manual will address all related issues which are related to the quality. And one of our colleagues, he mentioned about seed germination and others related to vegetable crops. So here, when we grow high value vegetable seeds, even percentage of germination is 90% plus. This is the feedback which I am having. I don't know 70% how it has come. And already seed certification standards are available with us, and Government of India has started 22 Center of Excellences. And those Center of Excellences, what they are doing, they even produce, they will take the seed from the farmer and they will produce seedlings for them, and they will charge a minimal amount, not much, only minimal amount, so that farmer will feel a kind of ownership. That's why a minimal amount has been kept. They charge from the farmer, they produce the seedlings, healthy seedlings are produced, and it will be free from the diseases, and those seedlings are made available to the farmers. Such Center of Excellences, I think each and every state is having now Center of Excellences, and those Center of Excellences are providing this much kind of services. So very good suggestion has come that participatory certification, participatory regulation cannot be done. Regulation, government will do regulate, but farmers participatory certification, I agree with you, and this we have done it for organic products. Now we have PGS system which is available for organic products. So similar kind of system, definitely I will take this point forward to the ministry, that we need to think upon it, and we need to have a kind of guideline, or first of all government should agree that yes, should we do this part or not. I think there is no harm, because already a farmer saved seed is used, farmer they also produce the seed. So here I think there will not be any kind of hitch, but this is a welcomable suggestion. By the way, US has a very good model of self-certification. Self-certification. These are the two different. Yes. By the way, just for your information, Iowa State University and Andhra Pradesh, I mentioned to they have signed the MOU to develop self-certification system in Andhra. Well, thank you. Thank you very much. So then again, one point was raised that for mushrooms we don't have standard. You are in a fix. Where to keep these mushrooms? Either in seed? No, because this is a fungus. So it's a fungus. So vegetable fungus. So again, we have given it to the microbiology and our center directorate. Now name has been changed. Directorate of Mushroom itself. They have already made the standards of seeds. Standards are available for the small production. I think you need to approach to them. Definitely they will provide you the document, and publication was also made. And yes, those standards have been already approved. Government of Haryana is trying to create some standards. But I will speak to them. Definitely we will do this. But your suggestion is very important. I'll just look at this part. So timely seed availability, really this is the point. Government of India has started Krishi Kalyan Abhiyan, and through this Krishi Kalyan Abhiyan, our Kharif crop seed availability was the success story, and this was the first time it was done. And here seeds were made available to the farmers, and it reached. And I monitored that program, and we ensured that it should reach to the each and every place wheresoever we have made target. Because in the Krishi Kalyan Abhiyan, few districts were identified. To start with, we identified that let's have a pilot. So if pilot is successful, then we will implement it throughout the country. We will do that. So that pilot was successful, and seed availability was ensured, and we watched, and these all things are now geotagged. So nobody can say that seed has not reached. So these all things are now monitored through a remote sensing system, where we get all informations, and then Krishi Kalyan, keeping in view the success of that Krishi Kalyan Abhiyan, now that has been extended for Rabi season. Again now see that's in process, and a good area coverage is now happening. In the last Kharif season we have covered around 1,067 lakh hectare area sowing has been done. This is a record sowing which has been done in the recent Kharif season. And again,
Jayad and summer crop season sowing is in progress, and so far 40 lakh hectare area has been sown. It is, the figures have just started coming to us, and now Rabi sowing data will also start coming to us. Rabi I am telling. Rabi just it has started. Then again we will go for the Kharif, and we are going to start another program related to this Jayad. We want that cropping intensity should increase, and we have made a kind of mapping that what are those areas where we can take up those Jayad production and area could be expanded, and we want that cropping intensity should increase and farmers' income should be maximized. You mentioned about wheat also. In some places wheat already there are set system is available. Rice also we are having a set system available. Now record production we got for wheat. Why? How this record production has happened? So only because of the seed input which has been made available to them. This record production of 99 million ton is a record production. So this has been achieved, and now we are having surplus wheat available. Rice again we are producing 111 million ton. Out of this 10 million ton we are exporting surplus is available. So there is no dispute. He was saying linking with nutrition. Linking with nutrition, biofortified varieties. Biofortified varieties, yes, are available. Definitely, I like your point. We will take up those varieties in the cluster demonstration. I assure you. Already going on. No, let me cluster demonstration it will be done. Let me submit one point. Don't confuse production and productivity. Okay. You see, what we are talking about is productivity is going down. You are talking about production. We have so many million tons. That is not the issue. Issue is how do you of the wheat seed, and that is not happening. So a few more points we have noted: climate resilient, our local varieties. These all things definitely we need to promote. If you need to bring second revolution without the introduction of these hybrids, it will not be possible. Yes. So, but hybrid varieties, it is restricted to only few crops, not for gram or lentil or something. Because this hybrid vigor, its acceptability and its hybrid vigor expressivity is only for the few crops. So this is only exploited for those crops. So pardon me. We don't get. Yeah. What happened? We more focused on the hybrid only. Yeah, I will. Registration of varieties should be mandatory. Yeah, we'll add it. So thank you very much for your registration of varieties should be made it mandatory. So we have a lot of local varieties. Farmer variety है तो आप PPV just express gratitude towards our chairman, Dr. S.K. Malhotra, and he has very nicely, and he has set also an example. Today was a holiday, government official. Still he has not. They have not. So he showed his intention also. And it was a great release, sir. You were here. I am also grateful to our co-chair, Dr. Gautam sir. He was yesterday travelled back from Delhi and again came for this session again. So this shows, and respect to our gatherings, quality was very high. So we think that we should applaud our gathering also, because whatever discussion we are doing, it's a very quality discussion, and we'll continue in the next session also. Thank you everybody for their keen interest. एक point आप सबको what are the new initiatives? अभी तक हमारा पल्सेस में now we are self sufficient. हम लोग कैसे self sufficient बने हैं? मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा. वो सब सीड हब प्रोग्राम की वजह से हुआ. ये हमारे फार्मर्स की वजह से हुआ. और सीड हब प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया, उसमें ब्रीडर सीड प्रोडक्शन पर जोर दिया गया पल्सेस के लिए, और उसके बाद से सीड हब प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारा सर्टिफाइड सीड है वो प्रोड्यूस हुआ और किसानों तक उपलब्ध हुआ. इसीलिए हम 25 मिलियन टन के पास पहुंचे. कहाँ 16 पर थे, कहाँ 25 पर पहुंचे. तो सारा जो मैं श्रेय है वो सीड को देता हूँ. दूसरा जो एक इनिशिएटिव है, भारत सरकार ने अपना प्रपोजल FAO के सामने प्रस्तुत किया था 4 अक्टूबर को 2018 को, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स मनाया जाए. तो उसके लिए हमारे को 2023 मिला है, और ये प्रपोजल मैं लेके गया था भारत सरकार की तरफ से, रोम में मैंने प्रेजेंट किया था, और ये 2023 का साल हम लोगों को दिया गया है, और उस साल को हम लोग
इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स के रूप में मनाएंगे। ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। देश को एक इंटरनेशनल लेवल का एक रिकॉग्निशन मिल रहा है कि हम लोग पूरे भी चैंपियन होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो प्रॉफिट मेकिंग रहेगा। तो क्या उसके दायरे हम तय कर सकते हैं? क्या दायरे तय कर सकते हैं तो उनको कहाँ तक लिमिट करना चाहिए? ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो बाहर से भी लोग भारत में आएंगे व्यापार करने के लिए, तो उनके लिए हमने क्या करना चाहिए? कि ऐसे सारे विषय अलग अलग हर एक के विषय होंगे, हर एक का अपना अपना सुझाव होगा, अपना मंथन होगा, चिंतन होगा। सवेरे हमने ट्राई किया है कॉन्ट्रडिक्ट ना करें, अपने अपने विषय रखें। मैं अभी इस सत्र में भी सबको निवेदन करूंगा, आपकी जो भी विषय है, जो भी आपका थिंकिंग है, और ये हमारी जो एक्टिविटी है पॉलिसी बनाने की दृष्टि से, तो आपके जो विषय है वो पॉलिसी मेकिंग की दृष्टि से आप उसको फ्लैग करिए इश्यू को, और हो सकता है तो जवाब दे, अदरवाइज जवाब हम लूज भी छोड़ सकते हैं। सत्र की शुरुआत में मैं भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जलपति राम, इनको आमंत्रित करूंगा कि वो इस सत्र की शुरुआत करें प्राइसिंग से रिलेटेड, इश्यूज रिलेटेड, और फिर हम जैसे पहले प्रथम सत्र में क्या साफ इश्यूज लेंगे उसको एक समराइज करने के लिए फिर अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे। डॉक्टर जलपति राम। Session we had before lunch, seed availability and some of the issues and supply also partly we discussed and expressed our opinion. Availability, there were a lot of concerns made to make. That means availability mostly were concerned with the production, who is producing and what type of seed they are producing, what type of seed is whether a hybrid or variety, what is their relevance to the different agroclimatic zones or agroclimatic situation, rainfed, irrigated. So where the hybrids are not required, still they are forced to pay the hybrid seed at a high cost. And as a science, we know that that particular environment, there is no scope for hybrid exploitation. So hybrid vigor cannot be exploited, therefore variety could be as good as. So in supply system, there are a lot of issues seems to be at the field level. Therefore, I think the chairman will continue the discussion and resolve it. One is how to make the supply system more reasonable and available to the farmers in time, and appropriate seed made available at the appropriate time, and so that farmer is not put to inconvenience or misjudge in selecting the seed not suitable for his environment. So I think this is though it is a link between the previous session and the session to come tomorrow, but this is an important one, how to keep the seed at the doorstep of the farmer. Just not the seed, correct seed, correct time. So these are the important things. The topic is open and the chairman requested to continue. Thank you. थैंक यू। एक तो आज विश्व नमस्ते दिवस है, नमस्ते दिवस, सबको नमस्कार, नमस्ते। और जो अपना दर्शन शास्त्र दिवस भी है, ये फिलोसफिकल भाई, हम नमस्ते से गुड मॉर्निंग जीएम पर आ गए। जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं तो बात आएगी वहाँ भी, क्योंकि सीड बेसिक हमारी जरूरत है, बिना बीज की खेती हो नहीं सकती। और भारत जैसे देश के लिए जहाँ सस्य श्यामला धरती हो, गंगा यमुना जैसी नदियाँ हो, ऐसे देश में 6 ऋतु में तो सब प्रकार से अनुकूलता होते हुए भी आज जो किसानों की दशा है, इस दशा तक पहुंचने में एक लंबा कालखंड गुजरा है। हम सबको ध्यान में होगा कि भाई भारत जैसे देश की जब कल्चर की बात आती है तो इट इज एग्रीकल्चर, विषय तो एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर। और आज हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इज एट स्टेक, क्योंकि बीज जो इसका एक महत्वपूर्ण अंग है वो हम बहन शिवा
वंदना शिवान। कॉर्पोरेशन गौर साहब आए हैं, सवेरे आना था लेकिन अचानक उनको मंत्रालय में बुलाया गया तो वहाँ चले गए हड़बड़ी में, फिर भी लेकिन उन्होंने अपना कमिटमेंट पालन करते हुए तो मैं उनको बुलाऊंगा कि समझ के आए। डॉक्टर सुनील पारिक जी से निवेदन करूंगा कि सुनील पारिक से अनुरोध करूंगा कि सरकार कुछ परमिशन के स्वागत करें। तो मैं कह रहे थे कि आवर कल्चर हैज बीन एग्रीकल्चर एंड नाउ वी आर हियर टू डिस्कस द स्टेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन एट स्टेक। चर्चा इसलिए कि बीज हमारे हाथ में नहीं, मैं वंदना शिवा ने जो कही कि एक तरह से हम जो बीज स्वराज की बात करें, अपने बीज को हम बचा पाएं, और इस चर्चा के अंत में हम शायद पहुंचेंगे कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। इसको एक शेप दे पाएंगे हम। तो पहली चीज ये है कि बीज की जो सप्लाई है उसकी उपलब्धता और उसके एक तरह से आपूर्ति, तो हाई वैल्यू लो वॉल्यूम में तो ये लगभग कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं कि ये प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम और लो कॉस्ट वाले जो सीड्स हैं वो अभी सेक्टर में है या किसानों के आपस में लेन देन से चल रहे हैं। मैं जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का विद्यार्थी रहा, हाइब्रिड सीड्स की बात चल रही है, तो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ किसी भी क्रॉप प्लांट की ले लीजिए आप, किसी भी प्लांटिंग मटेरियल, तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। किंतु क्रॉस पॉलिनेशन की अपनी एक समस्याएं थी कि हर बार की जो फसल लगाते थे वो अलग प्रकार की दिखती थी, तो उससे अपनी खेती में डोमेस्टिकेशन में जब की तो सेल्फ पॉलिनेशन ही लेटरल डेवलपमेंट है, एवोल्यूशन है, वो आवश्यकता है हमारी ऐसी क्रॉप्स के लिए। तो हर जगह हाइब्रिड की आवश्यकता नहीं, हाइब्रिड वहीं चाहिए जहां एक प्रकार से हमें हेटेरोसिस को एक्सप्लोर। व्हीट जैसी क्रॉप परमानेंट हाइब्रिड है, 3 जीनोम इसमें, तो इससे बढ़िया हाइब्रिड और क्या होगा, नेचर ने दिया है। दूसरे ऐसे ही तिलहन फसलों में भी जाता था, और जो मल्टी हाइड्रोलॉजी लेवल डॉक्टर सुरेंद्र पहुजा जी हमारे साथी बैठे हैं, हमारी ये चिंता रहती थी कि भाई हम अपने फूड ग्रेड में तो फूड सिक्योरिटी में तो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। अभी क्योंकि खेती हमारी बिना पशुधन के नहीं हो सकती, उसी पशु सहारा के लिए बीज की उपलब्धता आज भी विडंबना ये है कि उसके पौष्टिक उपलब्धता की बात करते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी वैरायटियां भारत से आ रही हैं, किंतु जई की बात इस सीजन में करेंगे तो कैंट वैरायटी का भी तो सारा सीड सप्लाई में है। बसीम की बात करेंगे तो इतनी अच्छी हमारे यहाँ की वैरायटियां आ रही हैं, किंतु वो मस्कावी कभी 1950s की बात है क्यों पहुंच जाए मस्कावी का, हाँ इजिप्शियन वैरायटी वो सब जगह उपलब्ध है। तो ये सीड सप्लाई में ये चीजें क्योंकि हमारे जो फ्रूटर क्रॉप्स है, अब क्या के चारा तो पशुओं ने खा लिया, अगले साल का बीज कहाँ से आएगा, फिर इंपोर्ट करोगे आप। तो ये क्योंकि अपना एग्रीकल्चर को सस्टेन करना है, तो फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर पशुधन के बिना हो नहीं सकती। तो उसके लिए हमारा पशुओं की हेल्थ बनी रहे और हमारी अपनी वैरायटियां आ रही है, वो कहीं ना कहीं सीड चेन में आए। प्राइवेट कंपनी अगर कुछ क्रॉप्स में आ रही है उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपने क्योंकि ये पशुओं के लिए भी भोजन की उपलब्धता कराना है, ये हमारा दायित्व है। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, इंटेंसिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। वास्तव में जंगल से हमने जो हमारे लिए अनुकूल फसलें बैठती थी, चाहे वो खाने के अन्न हो, यानी जब ये सृष्टि आई तो उसका प्रथम व्यवसाय तो कृषि ही है। इट इज द फर्स्ट ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट एंड बेस्ट। तो ये हम 60 के 70 के दशक से इसको करते रहे हैं,
और आज ये निष्कर्ष हो गया सबसे लिस्ट प्रीफर्ड ये ऑक्यूपेशन हो गया। तो ये एक लंबी काल था, 250 साल पहले देश सोने की चिड़िया था तो किसान सबसे खुश रहा था। वो 250 साल में उस पर जो रेवेन्यू का ये सारा बोझ पड़ा, खेती को छोड़ने लगा, उसके अपने साधन आज़ादी तक बने रहे, चाहे पशुधन हो, खाद की बात हो, बीज की बात हो, आपस में एक दूसरे से बांट करके वो करते थे, जिसका ये सारा था, भंडारण उसका स्वयं का था। आज उससे कटने के कारण से किसानों का ऐसा है कि स्थिति में ले जाकर के हम फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर क्या होगा इसमें उस पर चर्चा, भोजन का कोई विकल्प भी नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के इस 2 दिवसीय जो हमारा कंसल्टेटिव ग्रुप का एक सम्मेलन हो रहा है, परामर्श हम जब कर रहे हैं तो इसके जो डेलिब्रेशन जाएंगे, सुझाव आएंगे, रिकमेंडेशन जाएंगी, तो वो निश्चित रूप से सरकार को सोचने में मजबूर करेंगी कि भारत की खेती को बचाना तो हमने कौन सी दिशा लेनी है। और बीज सप्लाई में जो महत्वपूर्ण बात है उसमें टाइमिंग की बात आती है। टाइमिंग के साथ क्योंकि हमारा क्रॉपिंग पैटर्न हर क्षेत्र का, हर एक राज्य में भी 3-4 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न है, हर जगह एक ही प्रकार की खेती नहीं हो सकती। तो उस क्षेत्र विशेष के लिए, जोन विशेष के लिए कौन सी फसलों का बीज हो जो उसके अपने संसाधनों पर निर्भर हो, जो उसकी टाइमिंग क्या हो, किस समय उस बीज को समय में पहुंचाने के, समय पे अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है बीज की। अगर वो नहीं होती तो प्रोडक्शन में आता है, लाभकारी नहीं होती खेती। और तीसरे उसमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए, बात आ रही थी कि हमारे